पंकज जी शुरू करते हैं फिर, इंटरव्यू आपका है ना? जी सर, श्योर। चलिए पंकज जी बताइए अपने बारे में कुछ, लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट योरसेल्फ। Sir, I've done graduation in electronics and communication engineering from University of Delhi, and also MA in political science and international relations. Sir, from last 5 years, I'm working in Concor. It's a PSU with Ministry of Railways. पंकज एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, Okay. क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। को हेडफोन वगैरह डाल सकते हो आप कुछ? सर मैंने हेडफोन डाले हुए हैं। हाँ जी, आप हेडफोन डाल लीजिए, आई थिंक बेटर हो जाएगा। हेडफोन डाल लो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। जी सर, इज इट ओके नाउ? जी, एक बार हाँ वो करके देखते हैं पंकज, वी विल टेल यू अगर बेटर लगा तो। ओके सर। हाँ जी बताइए, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो सर, आई डिड ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, then MA in political science and international relations, and currently I'm working in Concor. It's a PSU with Ministry of Railways from last 5 years. And sir, I like playing table tennis and reading about current events of the time. And reading about current events. Yes sir. ओके पंकज, पहले तो थोड़ा सा मेरे को एक बेसिक डाउट जो आपके जर्नी को लेकर आ रहा है माइंड में। इंजीनियरिंग करी हमने, उसके बाद हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन PSIR में आपने MA करी। जी सर। ये किस तरह से डिसीजन के बारे में थोड़ा बताइए हमें, व्हाई डिड यू स्विच योर एंटायर लाइन ऑफ एजुकेशन अचानक से? Sir, actually after graduation I worked as software engineer for 2 years, and then उसके बाद फिर I started preparing for UPSC. Okay. And there I chose PSIR as my optional subject, and then I got fascinated with the political science and international relations. So I applied for MA in IGNOU. There I completed MA in PSIR. Okay, and उसके बाद you've been working for almost 5 years now. 5 years ago. So while preparing, I joined Concor. So पंकज, डैफ में हमने ऐसे आपसे वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछा था, तो आपने इसमें IBP लिखा है। What is IBP? IBP sir, Indus Valley Partners. This is my first job जो मैंने ग्रेजुएशन के बाद की as a software engineer. Then I left the job और फिर मैं full time prepare करने लग गया PSC के लिए। और after 2 years, then I joined Concor. And what are you doing in Concor right now? What is your work profile? Sir, as an assistant executive. Basically sir, Concor is a container train operator. तो जो import export के containers आते हैं, उनकी due diligence, उनकी custom clearance और उससे related work profile होता है। Right. So Pankaj, you are from Bhiwani. Yes sir. So can you tell me something about Bhiwani that the people outside Bhiwani don't know? Any specialty about Bhiwani? Sir, I think everybody knows about boxing club there. It's also called Mini Kashi for the number of temples that are there. There is a Harappan site also there. It was excavated in 90s. Which Harappan site? Sir, I think it is Mittal. Which one? Mittal. अच्छा जी, ठीक है। सो आपने जैसे पंकज आपने बात करा कि भिवानी इज फेमस फॉर रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, राइट? बॉक्सिंग एंड रेसलिंग के लिए भिवानी बड़ा फेमस है, बिल्कुल। सो रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज़पेपर्स एंड इन द न्यूज़ दैट द प्रोटेस्ट द रेसलर्स आर सिटिंग एट प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर। So can you tell me that what is the requirement that the sports administration of India has so that our sports administration is better? So what according to you should be the reforms that are required in the sports federations in India? Any sports federation?
So basically, it has to do with involving people from sports, the past players into the administration. Uh, at present, these organizations are heavily stocked with people with political background, and involving some of the past players into the administration can balance the whole process. आपकी आवाज पंकज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है Uh, आप किसी खाली कमरे में बैठे हो क्या? आप कहीं अपना रूम चेंज कर सकते हो आप? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ सर। ना रूम चेंज कर लो थोड़ा सा यार। ये खाली नहीं हो अगर हेडफोन भी हो ना तो नहीं लग जाएगा। सर यहाँ पे शायद थोड़ा कम बुझे। मुझे शायद बेटर वो होगा एक बार। नहीं, बोल के देखो कुछ। अब शायद ठीक आ रहा होगा सर आवाज। एक सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ जी पंकज, ये बोलना प्लीज। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। अब शायद आवाज ठीक आ रहा है। थोड़ा सा आवाज बस अब ठीक है। हाँ थोड़ा सा बेटर है पंकज। हाँ जी, सो पंकज रीस्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। राइट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। सो पंकज, यू सेड दैट यू हैव एन ऑप्शनल ऑफ इन यूपीएससी, you took an option by PSA, by the name of PSA, right? Political Science and International Relations. Yes sir. So you had an interest in international relations or the Indian government politics part? So Both. So Pankaj, can you tell me about the recent Sri Lankan crisis? Yes sir, it is basically a balance of payments crisis. There were actually the Sri Lankan government pursued populist measures for very too long, and उनका current account deficit बहुत ज़्यादा हो गया, and that's why they had to take loan from IMF. ठीक है, तो इंडिया ने उसमें हेल्प करा। So what was the role of primarily China in that? Do you think that China's assertive policies in our neighborhood is affecting Indian policy? Sure sir, Chinese presence in Indian Ocean do affect our strategic interests. Our smaller neighbors are induced in taking loans from China, and what happens is that they are unable to pay their debt. They are caught in the debt trap, and eventually Chinese recover their debt by making their presence there more permanent, and that affects our security concerns in the region. Security concerns for India, right? So Pankaj, in the city of Bhiwani, you talked about the idea of wrestlers and boxers. So if we see the wrestlers, boxing, and all this other sporting events, so we see there's a lot of participation of women from Haryana in these events. But on the flip side of it, Haryana is considered to be one of the states where there is a lot of missing women. Right, as there's a lot of your infant ratio is very less or the sex ratio is very less. So what are the primary reasons that there is so much of discrimination against women in Haryana, the state of Haryana, and how do you think that it can be changed? Sir, from last actually 90s, when the technology came for ultrasound technique, when there was no law about pre-conceptual testing, a lot of prenatal tests were done, और उस वजह से people preferred son over daughters, और वहाँ पे फिर sex ratio कम हो गई. But in past 2-3 years, law has been implemented effectively, और उसकी वजह से अब sex ratio थोड़ा improve हो रहा है. But still social stigma अभी भी है regarding having meta son preference. ये क्यों है? What is the reason behind that? Sir, actually
हरियाणा predominantly एक agricultural state है, and people wanted कि son is a better investment, and people used to think कि daughters are kind of a burden. But over a period of time, जब girls sports में और other fields में आगे आ रही है, तो थोड़ा mindset change हुआ है पिछले कुछ टाइम में. बट पंकज जी, फिर ये जैसे ग्रेजुअल चेंज हमें पूरे कंट्री में तो देखने को मिल रहा है, बट व्हाई इज दिस चेंज क्वाइट स्लो इन हरियाणा? तो ये जो एक सोशल चेंज आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ पा रहा हरियाणा में? व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दैट? सर्दी जो पैट्रियार्कल सिस्टम है और जो कास्टिस्ट माइंडसेट है, वो थोड़ा ज्यादा इम्बाइब्ड है हरियाणा की साइकी में, एंड people are not easy to change. It's not easy to change their minds, but things are improving of late. इंडिया हरियाणा की सेक्स रेशो भी बेटर हुई है पिछले 2 सालों में, एंड इफ मोर एंड मोर वुमेन कम एंड पार्टिसिपेट इन लेबर फोर्स, तो वो चीज चेंज होगी. लोग समझेंगे कि इट्स नॉट अ बर्डन बट एन अपॉर्चुनिटी. Right, Pankaj. If you see that, as you were talking about in the last answer as well about the patriarchal mindset and the regressive mindset of the people around of the society, so there is a lot of news and fuss recently about the same-sex marriages. So, what is your opinion about the same-sex marriages? Do you think that they should be legalized? Sir, actually, from a human rights perspective, gender identity must be left to the person. And in many countries, same-sex marriages को legalize कर दिया गया है. But I think Indian society has not evolved to a point that we can outrightly legalize same-sex marriages. But obviously, we can progress in this direction in a gradual manner. And after, say, 5 to 10 years, we would be in a position to legalize same-sex marriages. What is the Supreme Court's opinion about this? So, Section 377 has been decriminalized, but about legalizing the marriages, they have left it to the parliament to make a law. Right. So, Pankaj, in the state of Haryana, what are the major issues that you feel that the state of Haryana is facing as of now? And if you are selected into administrative services, what will be the 5 such issues that you want to focus and rectify at first? Sir, one would be the corruption in administration that needs to be tackled. The whole mindset should be changed, and the agricultural policy needs to be tweaked a bit, where we are focusing too much on rice and wheat. We should also support millets and other less water intensive crops. In the social field, we should promote our girls, educate them, and provide them employment opportunities. And sir, in the industrial sector, we should diversify our investments in Haryana. It should not be only Gurgaon, Faridabad, and some sectors. Overall, whole region should be given industrial preference. पंकज, अगर हरियाणा की बात करें तो जैसा सब जानते हैं कि गुड़गांव कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टुवर्ड्स द रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, है ना? चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 70 से 80% इन्वेस्टमेंट भी गुड़गांव के अंदर ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉकेट, पूरा हरियाणा द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट एंड गुड़गांव स्टैंड्स आउट. तो एक इक्विटेबल ग्रोथ का एक मॉडल होता है. अगर कल को आप भी सर्विसेज में जाएंगे तो इक्विटेबल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा प्लान है? आप कुछ कर सकते हैं या आप कुछ कर पाएंगे उसके लिए? सर, एक्चुअली गुड़गांव ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट की है और उसका उसे फ्रूट्स भी मिले हैं, बट अभी टाइम आ गया है कि हम अदर रीजन जहाँ पे लैंड अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, इंडस्ट्री को वहाँ पे प्रमोट करें. एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन कंजंक्शन विद
द सेंट्रल गवर्नमेंट एक एफर्ट किया जा सकता है कि अदर एरियाज ऑफ हरियाणा वहाँ पे लैंड अवेलेबल कराया जाए और इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके वहाँ पे भी एक इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ का मॉडल बनाया जा सकता है। तो पंकज, ऐसे आपने यू हैव रिटन दैट योर हॉबी इज प्लेइंग टेबल टेनिस, यस सर। तो व्हाई डिड यू इंडल्ज इनटू दिस स्पोर्ट्स ऑफ टेबल टेनिस? Sir, actually, while I was in college, there were not many options besides tennis and badminton. I picked up table tennis. I was playing in school also, but in college I got into it a little more, or I kind of liked it. So, तो आपका इंटरेस्ट नहीं था, लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से आप टेबल टेनिस की तरफ गए? सर एक्चुअली मैं पहले खेलता था, बट देन मेरे को उस फील्ड में कॉलेज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली एंड फिर मेरा इंटरेस्ट था ही, और फिर मैंने थोड़ा उसमें ज़्यादा खेलना शुरू किया। तो किसी लेवल तक खेले आप? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल? हाँ सर, मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल तक खेले हो आप? तो पंकज, ये इंडिया में टेबल टेनिस एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, ठीक है, जैसे हम भी खेलते थे जब छोटे थे, टेबल टेनिस खेलते थे, कॉलेज टाइम तक टेबल टेनिस खेला। So why do you think that this sport of table tennis is not growing in India? Why there is lack of players? We don't know many of the players from the table tennis. In spite of some great performances in India, in spite of Arjuna awards going into table tennis, there's very low awareness about this. And India is entirely as of now focused on just one sport nation, that is cricket. तो ऐसा क्यों है कि इतनी ज्यादा प्लेयर्स होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या होने के बावजूद भी एक स्पोर्ट पे हमारा क्यों फोकस है और दूसरा टेबल टेनिस की ग्रोथ क्यों नहीं है इंडिया में? सर एक्चुअली इनिशियली टेबल टेनिस को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता अर्ली डेज में, जहाँ पे अच्छी टेबल्स, अच्छे रैकेट्स, अच्छे बॉल्स मिले। इनिशियल ईयर्स में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा अच्छा भी खेलने लग जाते हैं, बट दे आर नॉट कम्पीटेबल, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते। तो जो इनिशियल स्टेजेस है, अगर वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो ग्रोथ हो सकती है। पीपल आफ्टर अ पॉइंट छोड़ देते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्किल्स, और वो स्किल्स नहीं होते बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पंकज, वैसे टेबल टेनिस तो जैसे अभी ये एक मॉडर्न नेम बन गया इस गेम का, तो इसका ट्रेडिशनल नाम क्या था इस गेम का? सर पिंग पोंग भी बोलते थे इसको। पिंग पोंग बोला जाता था। आप क्या हमें इसकी टेबल के ऊपर जिस पे खेला जाता है इसको, उसके डायमेंशन हमें बता सकते हैं? सर इट इज एक्चुअली 9 से 10 फीट लेंथ होती है एंड 5 फीट विड्थ होती है, और अबाउट अभी यू आर नॉट श्योर कि 9 से 10 के बीच में मतलब कहीं पे भी हो सकता है? सॉरी सर, मेरे को एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। अच्छा, जो एक बीच में जो नेट रहता है, आप उसकी हाइट बता सकते हैं हमें? नेट कितने हाइट पे होता है? हाँ सर, वो 2.5 इंच के आसपास होता है। 2.5 इंच के आसपास। और फ्लोर से कितना ऊंचा रहता है टेबल, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ अगर आइडिया हो? 3 फीट होता है। 3 फीट। पंकज, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट है, आपने मास्टर्स भी किया पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस और सोसाइटी बड़ा इंटरलिंक्ड टॉपिक होता है। तो आप देखते हैं कि पिछले कुछ साल में, पिछले कुछ समय में, इन लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव ऑफन सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रिसेंटली अबाउट द मूवी पठान, राइट, वी कुड सी दैट अ लॉट ऑफ बॉयकॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कितनी लिमिट होनी चाहिए? क्या जो संवैधानिक उसमें प्रोविजंस दी गई हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर दे सफिशिएंट, और देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया? सर कंसीडरिंग कि इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है एंड complete freedom of speech and expression, there are chances कि it will hurt somebody's sentiments. So complete freedom of speech and expression Indian society में viable नहीं है। But talking about that Pathan movie issue, I think about culture and about cinematic creativity, we should give it the freedom that it deserves.
I think the whole outrage was little unjustified. Outrage wasn't justified. outrage wasn't justified. Unjust- ठीक है सर, पंकज, आपने जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर रीडिंग करंट अफेयर्स मेंशन किया है, तो ये थोड़ा सा समझ Yes, में sir. नहीं आया, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया, आपने कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करी, यू हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी सच एक्टिविटी? Sir, not exactly. मैं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है मैंने अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेजेस में थोड़ा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। अभी आप बता रहे थे आपने स्पोर्ट्स के अंदर भी नेशनल लेवल, आपने स्टेट लेवल कुछ ऐसा खेला है, तो आपको वो भी मेंशन करना चाहिए था यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर में। हाँ सर, वो मैं, क्योंकि रीडिंग करंट से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो नहीं बनती। चलो एनीवेज, करंट अफेयर्स में किस तरह के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पसंद है? कोई स्पेसिफिक डोमेन या कुछ भी? सो बेसिकली पॉलिटिक्स एंड आईआर। पॉलिटिक्स एंड आईआर, हाँ जी भाई, सर आपके सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स एंड आईआर के आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो जैसे भी मैंने आपसे श्रीलंका पूछा था, ठीक है, जैसे भी आपने पढ़ा होगा भी, few days back there was a report that the New Zealand Prime Minister, she said that she is done with politics and she is resigning. यस तो सर। क्या लगता है आपको कि पॉलिटिक्स में भी कोई रिटायरिंग एज होनी चाहिए? सर डिपेंड करता है हम किस सोसाइटी की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कंसीडरिंग कि न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स बेटर है, तो वो ये बोल सकते हैं कि 60-65 कुड बी अ रिटायरिंग एज, बट वो फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं हो पाएगा। तो इंडिया में होना चाहिए कुछ रिटायरिंग एज? आपको नहीं लगता कि जो हमारी जो डेमोग्राफी देखें, सो आवर डेमोग्राफी इज क्वाइट यंग and our politicians profile, Yes, sir. so the maximum of politicians are above the age of 50-60. So don't you think that there should be certain kind of bridge between the politicians and the younger demography? Because people of the age of 70, there is a possibility that they might not understand our generations or your generation's understanding. So don't you think there should be some retiring age and a bridge between them? ये सर एक ऑल्टरनेटिव डिवाइस किया जा सकता है जहाँ पे एक बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल सिस्टर्स वुड बी ऑफ यंगर एज एंड हाफ कुड बी अबव 60, बट इट हैज टू कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स। बाय लॉ आई डोंट थिंक हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इस चीज। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी से मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में? यस सर, होना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% इंडिया यंग इंडिया है, तो देयर वॉइस शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एंड पार्टीज एंड कैबिनेट। तो एक मार्क होना चाहिए कि सपोज अबव 75 नो मिनिस्टर, या एक कैप अंकल आपकी कनेक्शन इशू आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो दैट इज इट फ्रॉम पंकज फ्रॉम आवर साइड। तो कुछ पहले फीडबैक देना चाहूंगा मैं आपको, राइट, विल ट्राई टू गिव सम फीडबैक। तो पंकज, आवाज आ रही है हमारी ना? यस सर। हाँ, तो पंकज जी देखो, ऐसा है कि एक तो ना आपके आंसर्स में ऑब्जेक्टिविटी की थोड़ी सी कमी थी, आपको ना थोड़ा सा इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? जो आपसे सवाल पूछा जाए आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, कि जैसे काफी क्वेश्चंस में ऐसा हुआ कि यू आर नॉट गिविंग कंप्लीट आंसर्स, लैक ऑफ डेप्थ इन योर आंसर्स। तो वो लैक ऑफ डेप्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इन योर इंटरव्यू, क्योंकि वो एक ना अनकनेक्टेड सी लगती है, कि कनेक्टिविटी का गैप आता है कि ऐसा यार एक क्वेश्चन कुछ और पूछा, आंसर कहीं और निकल गया। पहली चीज ये हो गया। दूसरी होती है कि जो सवाल पूछा जाए ना, वट एवर दे आर आस्किंग यू, यू हैव टू आंसर द एंटायर क्वेश्चन इन ऑर्डर। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा स्टेट की प्रॉब्लम्स क्या हैं और ऐसे 5 फैक्टर्स बताओ, पिन पॉइंटेड काम करोगे। आपने बताइए, आपने 5 फैक्टर्स भी नहीं बताया, 4 फैक्टर्स बताया, 5 नहीं बताया। आपने बताया अपना एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और बताया था आपने जी सर। बताया, 4 बताया, 5 आपने बताए नहीं। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। दूसरा, आप हरियाणा के इश्यूज की बात कर रहे हो और आपने जॉब इश्यूज की बात ही नहीं करी है।
एम्प्लॉयमेंट क्या, कहीं पे बात नहीं थी कि सबसे बड़ा आज जो इशू हरियाणा में एग्रीकल्चर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इशू है। तीसरा आपने इश्यूज की जो बात करी, आपने वुमेन रिलेटेड इश्यूज की बात नहीं करी, सोसाइटल रिलेटेड इश्यूज की बात नहीं करी। तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है कि यार ये चीजें कैसे हमने अलाइन करनी है। आपको पिन पॉइंटेड आंसर्स होने चाहिए आपके पास विद ग्रेट डेप्थ एंड। उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। यस सर। तो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर आपने एक बात बोल दी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सोसाइटी के अनुसार ही सिस्टम चलना चाहिए, आपने ये बात बोली। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 वाले जिस केस की हमने बात की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी शुड ओवरराइड सोसाइटल मॉरलिटी। तो एक तरफ हमारा संविधान है, एक तरफ सोसाइटी है, तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। आप सोसाइटल मॉरलिटी के, सोसाइटल मेजॉरिटी मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर आप माइनॉरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो आपको एक बैलेंस बना के इसका आंसर देना है। ओके सर। ठीक है पंकज जी, तो ये कुछ बातें हैं। और दूसरा आपसे मैंने जब पूछा कि टेबल टेनिस में लोग क्यों छोड़ देते, टेबल टेनिस में क्यों नहीं खेलते, तो आपने इस प्रॉब्लम बताई। आपने बोला सर ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है, तो गैस वर्क हो गया ना यार, आपने खेला टेबल, प्रॉब्लम है। इनफैक्ट पंकज जी, आपका जो हॉबी है वो तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसमें किसी में भी हम आंसर ठीक से नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर साइज की बात करें, आपने हर जगह गेस वर्क यूज किया है ना, कि सर 9 से 10 फीट लेंथ हो सकती है, प्रिसाइजली 9 फीट होती है। फिर जब आपसे पूछा कि ऊपर होता है, आपने बोला सर 3 फीट होता है, वो 2 फीट 6। फिर आपसे आपने 2.5 बोला, वो 6 इंच होता है। तो मतलब एक भी आंसर मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपका प्रिपेयर्ड था। और आपने अपनी हॉबी जिसमें मेंशन किया, यू शुड बी 100% वेल वर्स्ड विद दैट। तो अभी तो बहुत तरह के सवाल आ सकते हैं कि एशियन गेम्स में इसको कब इंक्लूड किया, हर तरीके की चीज। जैसे फॉर एग्जांपल रैकेट को रैकेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम, पैडल बोलते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल उठ के आएंगे क्योंकि आपने वहां पर मेंशन कर दिया कि ये भी है। क्योंकि जैसे आपने टेबल टेनिस का आंसर दिया ना, आपने उसमें बोला कि सर रैकेट सब्सिट्यूट होते हैं, पर वो रैकेट होता ही नहीं है, उसमें रैकेट को बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इन चीजों पर काम करना है। और दूसरा अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जो है ना, इसको चेंज करो। हाँ, इसको आपने जो रीडिंग करंट अफेयर नहीं आएगा, आपने जैसे कुछ टेबल टेनिस में खेला हुआ है या आपने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए, उन चीजों के ऊपर फोकस करो, वो चीजें लिखो। जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी दिखे कि आपने कुछ लीडरशिप के लिए किया है, आपने कहीं पे स्टेज के लिए संभाली है, स्टेज पे कुछ आपने स्पीच दी है, प्रेजेंट किया है, ऐसा कुछ करिए जिसमें आपकी वो एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी के बाहर है। ठीक है पंकज जी, इंटरव्यू से पहले इन चीजों के ऊपर अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, अपने आपको प्रिपेयर कर लो, राइट। तो एक डेप्थ होनी चाहिए और डाइवर्सिफाइड आंसर्स होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है पंकज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन था, जैसे डेप्थ तो उन्होंने पिन करवाया नहीं है अभी तक कोई, तो ये डिटेल्स उनके पास होंगी या मांगेंगे आपसे। वो हरियाणा में क्या करते हैं कि हरियाणा में वो मांगेंगे आपसे बाद में, ठीक है, वो एक कॉलम से भरवाते हैं, ठीक है, उस कॉलम में आपसे सारी बात पूछी जाएंगी। तो आपने तभी मैंने आपको बोला, या सर ने आपको बोला कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वही लिखना जो आप प्रिपेयर्ड हो। ओके, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लिखवाते हैं आपसे, कौन सा कॉलम सा भरवाते हैं, वो कॉलम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें वही चीजें लिखो जिसमें आप प्रिपेयर्ड हो और जो आपको पता है कि यार ये मैं हैंडल कर सकता हूँ। सर और दूसरी चीज जो एक और सॉरी, एक और आपको देना था कि आईआर के जो आपने आंसर्स दिए ना, उसको भी थोड़ा इलैबोरेट करो। जैसे आपने बार बार फोकस किया आपने कि मैं आईआर में इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आईआर के आंसर्स को इलैबोरेट करो थोड़ा सा। जिसमें हम चाइना वाला क्वेश्चन पूछे तो चाइना वाला प्रॉपर्ली इलैबोरेट नहीं कर पाया, ठीक है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करके उस चीज के ऊपर मेंशन करो, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है आईआर वाला, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है सर। हाँ जी। तो सर एक पूछ रहा था कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल में ऐसे बाइलिंगुअल ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब किस तरीके से अप्रोच करें? जैसा जिस भाषा में वो पूछेंगे उस भाषा में जवाब दो। ओके, If the question is asked in English, you will have to respond in English. Simple as it. ओके सर। ठीक है जी, ठीक है, डन। ठीक है पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज। थैंक यू सर।